Welcome once again to history session. I think so in the last video I had written English, so sorry for it. Make it take it as history. So we were discussing about the lesson judiciary, lesson number 4, the Indian judicial system. We also discussed that present Chief Justice is S.A. Bobde. So today we will be discussing about judicial activism. We also discussed the retirement of judge, Supreme Court and High Court. Everything we discussed, and appointment, where their salary come from, this that everything we discussed in the last video. Now in this video we will be discussing judicial activism. Means traditionally the court settle the disputes whenever they are approached for that purpose. Means whenever the court is approached for to settle dispute, it will settle dispute, no doubt. And if it doesn't, means they are approached for that purpose. In the last few decades, this image of the court has undergone a change and they have become increasingly active. Means they are deciding it in a more quicker way and in a fair way. This means that court seeks to fulfill the constitutional goals of justice and equality, and the court has tried to provide legal protection to the marginalized sections in society: women, tribal workers, farmers, and children. Public interest litigation have played an important role in this regard. Public interest litigation means public government is taking interest in this. That is public interest litigation. Functions of Supreme Court. As a federal court, it has responsibility to settle dispute. Federal court means it is for the center also, it is for the state also. Only one Supreme Court is there all over the country. हर स्टेट में और न्यू दिल्ली में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं है. सब जगह पे एक ही सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट सेंटर. It may also give orders to relevant authorities for protection of the fundamental rights of citizen. Relevant authorities को, उससे concerned authorities को वो ऑर्डर दे सकता है. जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है. ऐसे करके दे मे गिव orders to relevant authorities for protection of fundamental rights of citizen. We have already mentioned some right as fundamental rights, like right to get education, right for occupation, right for livelihood, right for settlement. All these are our fundamental rights. So to say, what fundamental rights means, अपन जो चाहे ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, तो ये सब फंडामेंटल राइट्स है. जो चाहे वो काम अपन कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं. म्हणजे ऐसा नहीं है एक जगह पे काम किया तो वहीं रुक के अपने को काम करना है, दूसरी जगह अपने को जाना ही नहीं है, तो ये नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो है, ये इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट क्या कर सकती है? कैन गिव ऑर्डर्स टू रिलेवेंट अथॉरिटी to review decrees and orders of lower court and also review its own decision. To review decrees and orders of lower court म्हणजे इनकी रिव्यू म्हणजे और एक बार सोचना, फिर से सोचना. म्हणजे हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, और इसका रिव्यू इट्स ओन डिसीजन. इट्स ओन डिसीजन म्हणजे खुद के डिसीजन को वो कभी रिव्यू करती. ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन. In case President asks for the advice of the court to understand the legal aspects in matter of public importance and provide the necessary advice. म्हणजे अगर प्रेसिडेंट किसी चीज़ में एडवाइस मांगता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको लीगली वो एडवाइस देना पड़ता है कि ऐसे से ऐसा होगा, ऐसे से ऐसा करना पड़ेगा. उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करना है वो प्रेसिडेंट देखते हैं. Why does the president seek the advice of Supreme Court on any issue of public importance? क्यों लेते हैं भाई प्रेसिडेंट
उनसे सलाह। One of the most important responsibilities entrusted to the Supreme Court is the protection of Constitution. Constitution का protection बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये सुप्रीम कोर्ट की. You are aware that the Constitution is the fundamental law of the nation. Constitution is the fundamental law of the nation म्हणजे कौन सी चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. एवरी एक्ट आर पॉलिसी मेड बाय एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी अभी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी जो है वो लॉज बनाती है ना, एग्जीक्यूटिव, तो लॉज बनाने में कोई भी पॉलिसी बनाना है या लॉज बनाना है तो कंटिन्यूस इट शुड बी ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही आपको लॉज बनाना है, उसके लिमिट्स में रह के ही आपको लॉज बनाना है. सो legislature or any act of the executive violates any provision of the constitution, the said law or act is declared illegal and struck down by the court. अगर कोई एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के उसके दायरे में न रह के अगर आप बनाते हो लॉज तो उसको इलीगल लॉ बोला जाता है. दिस पावर ऑफ कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. इसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं. शुड द कोर्ट हैव सच अ राइट? कोर्ट को ऐसा राइट होना चाहिए? ऑफ कोर्स इट शुड हैव. देन हु विल हैव, है ना? कोर्ट को नहीं होगा तो किसको होगा? ऑफ कोर्स कोर्ट शुड हैव. द कोर्ट हैज आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन इलेक्शन टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी एंड इनकम डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थ्रू एन एफिडेविट. The aim was to ensure that the voter will vote on the basis of accurate information about the candidates. Is this not an attempt to make our election process more transparent? म्हणजे कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट का जो है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ें जो है उसका एफिडेविट क्यों मांगती है? कमीशन, इलेक्शन कमीशन रहता है ना, वो कोर्ट के थ्रू कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें, इनकम डिटेल, प्रॉपर्टी कितनी है, सब मांगती है. तो उस हिसाब से फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी, इनकम देख के फिर वोटर्स विल वोट. एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर वोटर्स के पास है तो वोटर्स इसको वोट करेंगे. तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. म्हणजे इससे सच्चाई सामने आती है और सच्चाई सामने आने के बाद आपको वोट करना आसान होता है. आर देयर एनी मोर सच ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट? फाइंड आउट मोर ऑन दिस. इस सब्जेक्ट के बारे में कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको पता करिए. कोई ऐसा आपके पास एविडेंस है तो उसको पता करिए. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL refers to public interest litigation filed on the issues of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization. प्लीज़ इसको अंडरलाइन करिए. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेफर्स टू लिटिगेशंस. लिटिगेशंस म्हणजे दावे करना या इल्ज़ाम लगाना. फाइल्ड ऑन द इश्यूज ऑफ, कौन से टाइम में ये दावे लग सकते हैं? पब्लिक इम्पोर्टेंस बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स द्वारा ये दावा लग सकता है. सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको लगाते हैं. सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी ये दावा लगा सकती है. PIL आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल. द कोर्ट थिंक्स ओवर द क्वेश्चन रेज्ड एंड गिव्स इट्स डिसीजन. कोर्ट इसके बारे में सोचती है फिर अपना डिसीजन लेती है. जैसे अब हाई कोर्ट है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन द यूनियन. करंटली देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. स्टेट तो 29 है पर कुछ कैसे जॉइंट रहता है. देर इज अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ अदर जजेस इन द हाई कोर्ट. ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सभी जज, जितने भी जज है हाई कोर्ट के बोलो
सुप्रीम कोर्ट के बोलो, सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। द बॉम्बे हाई कोर्ट्स jurisdiction covers the states of Maharashtra, Goa and Union Territories of दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। म्हणजे बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ तक किस किस जुरिस्डिक्शन को कवर करता है। जैसे आपको मैंने इनिशियली बताया कि 29 स्टेट्स है लेकिन हाई कोर्ट 24 ही है, तो महाराष्ट्र एंड गोवा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव सब मिला के एक बॉम्बे हाई कोर्ट है। फाइंड आउट two other such example where high court has jurisdiction over more than one state। more than one state पे jurisdiction जिस हाई कोर्ट का रहता है उसके एग्जाम्पल आपको ढूंढने को बोला है। functions of high court to supervise and maintain control over the lower courts in its jurisdiction। अपने jurisdiction में हाई कोर्ट से नीचे वाली जो कोर्ट रहती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या लोअर कोर्ट हो गई, उसको आपको टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल रखना है और उसको दिशा भी दिखाना है। सुपरवाइज म्हणजे दिशा दिखाना। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट को ये ऑर्डर है कि लोअर कोर्ट को अथॉरिटी दे कि फंडामेंटल राइट्स वो प्रोटेक्ट कर सके। द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट while appointing judges in the district court। गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो क्या करता है? हाई कोर्ट का एडवाइस लेता है। जबकि हेड ऑफ द कंट्री किसका एडवाइस लेता है? सुप्रीम कोर्ट का। समझ में आया ये डिफरेंस दोस्तों? गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट करना रहता है, जब हाई कोर्ट का एडवाइस लेता है गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, दीज आर द कोर्ट्स ऑफ एट द डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका लेवल। द पीपल जनरली गो टू दीज कोर्ट्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ वन डिस्ट्रिक्ट जज। ज़्यादातर लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर कहीं बात नहीं बनी और लगता है कि नहीं हम केस जीत सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट कितना इम्पोर्टेंस है उस एक्ट का देख के फिर सुप्रीम कोर्ट उसको हाँ या ना में जवाब देती है। द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया में लॉ की ब्रांचेस कितनी हैं? देर आर two main branches of law, that is civil law and criminal law। important branches, please underline this। इसमें आपको क्या बोलते हैं, चार्ट के रूप में भी आ सकता है, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। there are two main branches of the law।